of a bond is a combination of the present value of the interest that you're going to earn and also the present value of the redemption value or the face value of the debt or rather bond that you have. That was the second application again of the ordinary annuity. And then we moved on to the concept of sinking fund, whereby a bit of a difference, if you would know, if I would ask you, let's say I would ask you, one of you please answer me. When I'm saying I'm applying amortization of loan usually, or maybe the this bond valuation, how is that different from sinking fund? What is the difference? In sinking fund, what am I doing? Anybody? Very big point of difference. Socho? Okay, let me reply if you don't have the answer. See, usually अगर आपने देखा bond valuation में भी हमने bond valuation में भी और amortization में भी दोनों ही जगह हमने present value लगाया, present value वाला formula लगाया. लेकिन sinking fund में क्या हो रहा है? Sinking fund में मैं क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ कि आज मेरे पास मैंने एक डिबेंचर इशू किया और मुझे उसको 5 साल बाद रिडीम करना है. 5 साल बाद, दैट मीन्स 5 साल बाद मुझे इतना पैसा चाहिए. So which obviously means I am not applying present value here. I am applying here is future value. This is the major point of difference that you need to understand. So that's what is happening in sinking fund. So if you remember, sinking fund, we were applying the future value and the future value factor is SNR, while the present value factor was ANR. That is the difference, by the way. So we started with sinking fund. जिसमें पहले हमने application की थी this thing ordinary annuity की. And then we came to another kind of annuity after ordinary annuity, which was annuity due. Okay, before I move ahead, I want one of the persons to please reply. What is the difference between annuity due and ordinary annuity? Anybody? Difference between ordinary annuity and annuity due. Ratika, can you tell me? Anukriti, what is the difference between ordinary annuity and annuity due? Ma'am, annuity due is in the beginning of the month and... Okay, you mean, let me clarify that. You mean annuity due is when you are making the payment in the beginning of the period. Okay, whatever period it is. Month ho sakta hai, quarterly ho sakta hai, annually ho sakta hai, that depends. So you can't say month really, but the beginning of the period. While ordinary annuity is when you're making the payment at the end of the period. All right? Clear? Anybody, please, before I move ahead, I really want to clarify this. Is there any doubt between ordinary annuity and annuity due? Do you understand the difference between ordinary annuity and annuity due? Yes or no? Say yes and then only I can move ahead. Yes, no, बोलो आगे तभी चल सकते हैं. Do you understand the difference between ordinary annuity and annuity due? Yes, ma'am. Okay, fine. So which means then we talked about annuity due, and so the application of annuity due, so to say, we did a couple of questions which were technically based on, कहीं question में हो सकता है लिखा ना हो by the way sinking fund. Let me clarify. क्योंकि अभी सब कुछ मिक्स हो जाएगा आपका. आज की क्लास के बाद आपको सब पता होगा, सारे फॉर्मूलाज पता होंगे और चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको कंफ्यूजन होगी जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे और मैथमेटिक्स और फाइनेंस का क्वेश्चन देखोगे. अभी तक बहुत सिंपल चल रहा था. एनुटी ड्यू किया, उसके क्वेश्चंस किए. ऑर्डिनरी एनुटी किया, उसके क्वेश्चंस किए. बॉन्ड किया, बॉन्ड के क्वेश्चंस किए. अब सब मिक्सअप हो जाएगा. इनफैक्ट आई वुड एडवाइस यू और रादर आई वुड माई सेल्फ ट्राई टू सेंड यू सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और फाइनेंस वेयर यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वाला एनुटी लगेगा और क्या प्रेजेंट वैल्यू लगेगा या फ्यूचर वैल्यू. सो द थिंग वाज दैट अगर एट द बिगनिंग आपको दिया होगा तो आपने लगाना होगा एनुटी ड्यू, और अगर आपको एट द एंड दिया होगा तो आपको लगाना होगा ऑर्डिनरी एनुटी. बट अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो assumption is it's ordinary annuity and hence at the end लगाएंगे हम. So we come to the second last part of this chapter or second last topic of this chapter, which is deferred annuity. As the word suggests, deferred annuity means defer. आप annuity को कुछ टाइम तक defer करते हो. मतलब
कि लेट्स से आपको कोई चीज 10 साल में पे करनी थी, रीपे करनी थी, लेकिन आपने पहले 3 साल या 4 साल तक उसे डेफर किया और पहले 3 या 4 साल तक आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो वो बन गई डेफर्ड एन्युटी. As simple as that. So what is deferred annuity? First point, it is an ordinary annuity. Point number one, deferred annuity is an ordinary annuity, which means you're making the payment at the end, in which the first payment is postponed. तो पहली पेमेंट जो होनी थी वो आपने पोस्टपोन कर दी until the expiration of a certain number of payment intervals. जैसे कि मैंने बोला 10 साल में आपने कुछ रीपे करना था, पहले 3 साल आपने रीपे किया ही नहीं, डेफर कर दिया पहले 3 साल तक. When the term of an ordinary annuity of n period begins, m period hence. What does it mean? I'll show you with the help of a diagram. There's some people who want to join in. Just give me a minute. So yeah. So when the term of an ordinary annuity of n period, क्या बोला था मैंने बोला 10 सालों में पे करना है, तो n period हो गया n. Begins m period hence. मैंने बोला पहले 3 साल तक आपने डिले कर दिया. The annuity is said to be an annuity of n periods, deferred m periods. Let's see it with the help of a timeline. You see this? यहाँ पे आपकी ये annuity है n period की, n तक, ठीक है? यहाँ तक जा रही है, n तक है आपकी ये annuity. लेकिन आपने पहले महीने नहीं पे किया, दूसरे महीने नहीं पे किया, so आपने यहाँ तक m तक let's say उसे defer कर दिया. So term of deferred annuity, total term of deferred annuity तो आपकी है यहाँ तक n तक, लेकिन interval of deferment क्या है? m तक. जहां तक जितने साल आपने उसे defer किया उसको हम कहते हैं interval of deferment. Now there is one point that you have to understand, and a very very big point, that is, बहुत carefully इसको ध्यान देंगे questions में. The length of time between now, मैं now यहाँ पे हूँ, the length of time between now and the beginning of the term of the deferred annuity, यहाँ ये सारा जो देखिए यहाँ से यहाँ तक, is called the interval of deferment. The interval of deferment, which ends one period before the first payment is due. Now this is very important. Why? ये जो point कहता है, ये कहता है which ends one period before the first payment is due. मैंने अभी आपको बोला था कि 10 साल और पहले 3 साल आपने पेमेंट नहीं करी. अगर आपने पहले 3 साल आपने पेमेंट नहीं की तो m is not 3, m is 3 minus 1. It says deferred annuity is called the interval of deferment which ends one period before the first payment is due. क्या मुझे कोई जवाब दे सकता है कि -1 क्यों है? Anybody? Because this is something you will have to remember. But why? What is the logic कि -1 क्यों है? Can anybody try? Okay, let me tell you. So see, I said in the beginning that deferred annuity is an ordinary annuity. Deferred annuity ordinary annuity ही है. पहली बात, अगर वो ordinary annuity है तो इसका मतलब पेमेंट हो रही है at the end of the period. अगर वो पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हो रही है तो ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पीरियड हो रही है, तो वो जो एक पूरा पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है, वो पूरा मुझे माइनस करना पड़ेगा. And therefore, that is what m will be equal to, which I will show you with the help of a question, but I will just repeat this entire important point for deferred annuity. और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ यही एक major point है. The length of time between now and the beginning of the term of the deferred annuity is called the interval of deferment, which ends one period before the first payment is due. अब point ये है, अगर आपसे question में पूछे कि भाई आप present value निकालो इस deferred annuity की, तो आप कैसे निकालोगे? आप प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालोगे, पहले तो आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे यहां से लेके ये प्लस ये यहां तक की प्रेजेंट वैल्यू, इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या? ये पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू, विच मीन्स आपके पास जो बची वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई है ये डेफर्ड एन्युटी की. कैसे? लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला. अभी तक जब हम प्रेजेंट वैल्यू लगाते थे, एन्युटी फैक्टर लगाते थे, ए लगाते थे, एस नहीं लगाते थे, एस लगाते थे जब हम फ्यूचर वैल्यू लगाते थे. तो मुझे पता है ए तो लगाना ही है मैंने, पहली बात. दूसरी बात, P which is present value is equal to R, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है, so to say, within brackets A, M plus N
R% minus AM R%. This is what I just said in theory, but let's see it with the help of a question now. Okay, I'll ask you in between, just try to answer and उससे पता चल जाएगा आपको कितना समझ आया. So for example, a company buys a machinery by making a down payment of 75,000. So company ने machinery खरीदी 77. Anybody wants to say something? Okay. A company wants to buys a machinery और उसके लिए machinery खरीदने के लिए 75,000 तो down payment कर दी and agrees to pay the balance. जो बच गया, let's say 5 लाख की है या जितने की भी machinery है, जो बच गया, जो balance बच गया, उसको उसने decide किया, agrees to pay the balance in 4.5 years. अग्री किया कि अगले 4.5 years में वो सारा बैलेंस पे करेगा. कैसे? कंपनी बाय इक्वेटेड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5,000 ईच. सबसे पहला क्वेश्चन, एनीबडी हु वुड लाइक टू आंसर कैन आंसर मी. कैन यू टेल मी व्हाट इज आर इक्वल टू हियर? व्हाट इज आर इक्वल टू? यहीं तक पढ़ा है मैंने क्वेश्चन, ईच तक. एनीबडी, व्हाट इज आर इक्वल टू? बताओ जी, आगे नहीं बढ़ सकते उसके बिना. Anyone, what is R equal to? अपने आप में बताते तो मैं बोलना पड़ता है. इश्माइल बोलना है, अनम्यूट हो तुम, बोलो. 5,000. Yes, 5,000. So पहले हुआ R तो 5,000 है. आगे चलते हैं, आगे समझते हैं. The first installment to begin after 2 years from now. The first installment to begin after 2 years from now. आज से 2 साल के बाद मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू होगी. आज से 2 साल के बाद मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू होगी. ठीक है. Now the other point that you have here is find out the cash price of machinery if the rate of interest is 8% compounded quarterly. अब देखो, पहली बात कैश प्राइस, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, ये भी एक कंफ्यूजन हो सकता है. कैश प्राइस का मतलब क्या है कि ये जो मशीनरी है मुझे ये कितने की पड़ी? मुझे 75,000 तो आज की डेट में डाउन पेमेंट करनी है, प्लस मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट देनी है कुछ सालों तक. ठीक है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज, मैंने बोला था आपको, अब देखो ये 75,000 जो है, ये जो P इज इक्वल टू R वाला फॉर्मूला है, इसमें कहीं भी 75,000 नहीं है. लेट मी क्लैरिफाई. इंस्टॉलमेंट के लिए जो मेरा सेकेंड पार्ट है, मेरे पास 2 पार्ट्स है कैश प्राइस के. कौन से 2 पार्ट्स है कैश प्राइस के? पहला पार्ट कैश प्राइस का है 75,000 का डाउन पेमेंट, प्लस जिसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना होगा RAM प्लस NR माइनस AMR. सो देयरफॉर नाउ आई हैव टू सी कि मेरे M कितना है और N कितना है और R कितना है, एंड देन आई कैन एक्चुअली गो अहेड विद द फॉर्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपलेस्ट थिंग, हाउ मच इज N equal to? How much is N equal to? मैं किसी से पूछूंगी, इश्माइल से नहीं पूछूंगी, लेकिन in this question, मृगांक, you there? गायब है मृगांक. गायब, भाग गया. मृगांक भाग गया. Okay, let's go ahead. अनुकृति से मैं पूछ चुकी हूँ. अमनदीप, are you there? अमनदीप, बच्चों कोई फायदा नहीं है, ऐसे कैसे करोगे? आदित्य सब गायब है. किसको पढ़ा रही हूँ मैं जब गायब ही हो तुम लोग? सारा, are you there? सारा, सब गायब है. मुझे N का जवाब चाहिए जी. हाउ मच इज N इक्वल टू? एनीवन? क्वेश्चन देखो और बताओ. आगे नहीं बढ़ रही मैं उससे पहले. इन दिस क्वेश्चन, हाउ मच इज N इक्वल टू? बच्चों सो गए. रतिका, कौन बोल रहा है? मृगांक. हाँ, मृगांक क्यों दे? यस मैम. हाँ देखो, एक सेकंड दिखाने दो क्वेश्चन. अब बोलो, मुझे इस क्वेश्चन में पता करना है व्हाट इज N इक्वल टू. मैम 18. हाउ? मैम 4 years, 4.5 years है, and Yeah. then
क्वार्टरली पेमेंट है तो 18. Correct. 4.5 into 4 is what he means. So yes, he's right. N is 4.5 into 4. पहली चीज, ठीक है. So मेरे पास N is equal to 18. Clear? Now the next point is that क्या है मेरी deferred annuity? ये जो 4.5 है मेरी, ये तो मेरी हो गई टोटल जो नंबर ऑफ ईयर्स हो गए, ठीक है. अब मुझे चाहिए होता है M और मुझे चाहिए होता है N चाहिए होता है. दूसरा पार्ट वो कहता है बाय इक्वेटेड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स. आर भी आ गया मेरे पास, यहाँ पे मैं आर फिल कर सकती हूँ, एन भी फिल कर सकती हूँ. मेरे पास एम और आर रह गया. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बिगिन आफ्टर 2 years फ्रॉम नाउ. बी वेरी वेरी केयरफुल ऑल ऑफ यू. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बिगिन आफ्टर 2 years फ्रॉम नाउ. सो हाउ मच इज एम इक्वल टू? एनीबडी? एम कितना है? मैम 8. गुड. हाउ? अनुकृति, हाउ कैलकुलेशन? मैम 2 multiply 4. That's correct. क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट. बिल्कुल ठीक है, ठीक है. और इस क्वेश्चन में आपको बाय द वे फैक्टर्स भी दिए हुए हैं, तो बहुत ही सिंपल है. आपके पास 5 मिनट हैं. मैं फॉर्मूला फिर से नहीं दिखा रही, ऊपर दिख ही रहा है आपको. वैसे ये देखिए, तो मुझे आंसर चाहिए इसका. कैन यू जस्ट कैलकुलेट द आंसर एंड गिव मी? 5 minutes you have, all of you. Give me the answer of the question. Whoever is done, just let me know. Please remember, I've asked you the cash price. ये ध्यान रखना, मैंने कैश प्राइस पूछा है पूरा. मुझे कैश प्राइस का आंसर चाहिए. $1,63,365. 69. Correct, Ishmael. Others, is it right? Any doubt? Ask. See, I said मुझे पूरा आंसर चाहिए. आप लोगों ने पहले तो फॉर्मूला लगाया होगा. P is equal to 5,000 ANR minus AMR whatever. But then that is not the full answer. That will only give me the installments का total कि मैंने रीपे कितना किया. प्लस मैंने 75,000 डाउन पेमेंट भी तो दी थी. So therefore 75,000 plus जो फॉर्मूला से मेरे पास आया, that was the second part of it. So my answer is this 163365.69. That's what Ishmael has said. Has everyone got it, or shall I give you a couple of minutes to solve it and then move ahead? Please tell me. Time चाहिए कि आगे चलें? Just let me know whether I should go ahead or wait for you to solve it. बोलो बच्चों. बोलो तो सही, आगे चलूं कि रुकूं? तभी तो पता चलेगा मुझे. So I go ahead. Second question now. Mr. Govardhan borrows from bank 12 lakh, right? Yeah, 12 lakh at the rate of 9% per annum to be paid in 6 equal installments with interest, with the first installment falling due at the end of 4th year. Find the amount of each installment. ध्यान से करना भाई इस क्वेश्चन को. करिए. I'm waiting. I'm waiting. और इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में डिफरेंस भी देख लेना. डिफरेंस है इतना, मैंने हिंट दे दिया. अब बताओ क्या डिफरेंस है और इसको सॉल्व करके बताओ. आई एम वेटिंग. Anyone? So what is n equal to? पहला क्वेश्चन
यू हैव टू फाइंड आउट n m r, उससे ही आपको पता चलेगा n कितना है. अच्छा चलिए पहले हम देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में. ठीक है, अमनदीप आप वहां पे हो बेटा? अमनदीप, मुस्कान, आर यू देयर? उन्हें आके गायब हो जाते हो, ऐसे बिहेव करते हो नहीं. सारा, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी क्लास में आज, तो नहीं चलेगा. वैंग, हैरिसन, ऐसे कैसे क्लास चलेगी? कोई जवाब नहीं आएगा. आई कांट गो हेड क्लास. व्हाट इज द पॉइंट? आदित्य, आर यू देयर? बोरिंग क्लास, वेरी बोरिंग. अनुकृति, दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं आज. 3 बच्चे, अनुकृति, इश्मेहर और मृगांक. अनुकृति, यू देयर? यस मैम. हाँ अनुकृति, मुझे बताओ, सिर्फ इतना बताना है, कुछ नहीं बताना है. एम पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में तुम्हें डिफरेंस क्या लग रहा है, ये बताओ बस. कोई डिफरेंस लग रहा है कि सेम लग रहा है? ये बताओ. मैम फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. नो, ये नहीं है पॉइंट. कोई बात नहीं, किसी और से पूछते हैं. आप जो एक्टिव लोग हैं एटलीस्ट पहले उनसे डिस्कस करते हैं, फिर आगे बात करेंगे. इश्मेहर, तुम्हें लग रहा है कोई डिफरेंस यहाँ पे? यस मैम. बताओ. इसके अंदर जो पीरियोडिक पेमेंट है वो नहीं दे रखा, जो टोटल प्रिंसिपल है वो दे रखा है. एग्जैक्टली उल्टा है, मतलब फॉर्मूला सेम ही है जो कि था P इज इक्वल टू R AM प्लस NR माइनस ANR वाला, लेकिन पहले हमें R दिया हुआ था, दैट वाज 5000. बट यहाँ पे 5000 की जगह मुझे P दिया हुआ है कि मैंने आज की डेट में इतना लोन लिया, दैट इज 12 लाख. पहला डिफरेंस तो ये है, और भी डिफरेंसेस है, आगे देखते हैं. गुड इश्मेहर, 12 लाख इज दी P that I have. This is not R, पहली बात. ठीक है. Now let me go ahead to मृगांक only. मृगांक, are you there? गायब हो गया, मृगांक भी गायब हो गया लगता है. यश, are you there? वंश, are you there? वंश, आप तो लेट आए हो, अगर हो तो बोलो, कोई बात नहीं, डरो मत. वंश, are you there? सारा, कहाँ हो, कहाँ तुम लोग? गायब हो गए सारे. राहुल, वेरी बैड. ओके, सो आई गो हेड. नाउ द थिंग इज ड्यू 6 इंस्टॉलमेंट्स. तो पहली बात n, मुझे चाहिए n. सी ऑल ऑफ यू हियर, 6 इज माई n, क्योंकि ये कहता है इज टू बी पेड इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, कि मुझे 6 इंस्टॉलमेंट्स में ये खत्म करना है. पहली बात तो n तो हो गया 6, मुझे पता है. अब डेफरमेंट का इंटरवल निकालना है मुझे, विच इज m, with interest with the first installment falling due at the end of 4th year. 4th year, anybody? अच्छा, ये किसी ने मुझे बोला शायद, हाँ अनुकृति. ओके, तुम्हारा डाउट मेरे को अब समझ आ गया, तुमने क्यों ऐसा बोला. नीचे क्वेश्चन में ये लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट. बेटा क्वेश्चन में अगर अमाउंट लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है अमाउंट का फॉर्मूला लगा दोगे. मैं समझ गई तुम्हारी पॉइंट, बट हाँ ये कंफ्यूज करने के लिए किया गया है. सो आई एम ग्लैड अनुकृति यू सेड दैट. सो फ्यूचर वैल्यू इसलिए नहीं है, तुमने शायद अमाउंट पढ़ा तो तुमने बोल दिया कि मैम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है. ठीक है, हमें ये देखना है 12 लाख तो मैंने आज की डेट में लिया है ना, आज की डेट में लिया है मतलब प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा. दूसरी चीज वो पूछ रहा है इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट. इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ लॉन है, इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा. तो दोनों चीजों से प्रूव हो गया कि मेरा फ्यूचर वैल्यू नहीं लगेगा. ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट m. Can anybody tell me what is m equal to? And this is very very tricky here. Anybody who will tell me what is m equal to? That's the only point in this question, and with this deferred annuity will be over. How much will be m equal to? Anybody? Ma'am, m is 3, I guess. Yes, who is this? Ratika. Yes, Ratika, that's correct. How, Ratika, can you explain, beta? Ma'am, because it's written that we are starting after 4 years, the payment after 4 years. Right. So the period is always the 4 minus 1, m minus Yeah. 1. So
That is right. One more thing I would like to tell all of you is, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो just like I told you, the best way out here is you make a timeline and then you see कि पहली इंस्टॉलमेंट तुम पहले साल के एंड में पे करोगे, दूसरी दूसरे साल के एंड में, तीसरी तीसरे साल के एंड में, एंड सो ऑन. तो उससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इट विल बी इक्वल टू 4 - 1 विच कम्स आउट टू बी 3. सो देयरफॉर दिस इज व्हाट विल बी देयर. टेबल होंगे आपके पास, एक बार इसको सॉल्व करिए और देन मैं लास्ट टॉपिक पे जाने वाली हूँ इसके बाद. Solve this question please. 5 minutes and then I'll go ahead on perpetuity after 5 minutes. I give you 5 minutes all of you. Waiting for you to complete the question. Yes, can we go ahead? All of you. विश्मेर आगे चले. Yes, ma'am. Okay, so last topic of mathematics of finance, everyone, and it's the easiest actually. It's perpetuity. So perpetuity, also if you remember the word perpetual, what does perpetual mean? Basically means perpetual existence. Company याद आया कुछ? Anyone? Company has perpetual existence. Perpetual क्या होता है? Features of company में करते थे. Continuous. Yeah, so that's what perpetuity means. Perpetuity means it goes on forever. So therefore, perpetuity is an annuity whose payment continue forever. Now, the point here is that अब अगेन क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको 2 पार्ट्स में हर एक क्वेश्चन कराया है. पहला पार्ट मैंने आपको ये बोला कि पहले तो आप फाइंड आउट करो कि भाई ये ऑर्डिनरी एन्युटी है कि एन्युटी ड्यू है. ठीक है. दूसरा तीसरा इनफैक्ट आप नया पॉइंट आ गया है कि या तो वो डेफर्ड एन्युटी है. इन तीनों में से एक टाइप की वो एन्युटी होगी. दूसरा पॉइंट क्या आता है, आप ये फाइंड आउट करो कि वेदर आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है. सिमिलरली जब परपेचुइटी मैं बोलती हूँ कि इट कंटिन्यूज फॉर एवर, तो देयरफॉर अब कंटिन्यूज फॉर एवर में प्रॉब्लम ये आती है कि मैं क्या क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू पे आ सकता है परपेचुइटी में. यूजुअली देखा जाए तो परपेचुइटी की फ्यूचर वैल्यू निकालना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. इट विल बी लाइक इन्फिनिटी, गोज ऑन टिल इन्फिनिटी. So hopefully you would, or rather I would say, I mean, you would not really get a question on the amount or rather the future value of perpetuity, but a question will revolve around present value. पहली बात. Again, now अब ये जरूर हो सकता है कि भाई कब, at the end या फिर at the beginning. At the end या फिर at the beginning. Just like हम पहले questions में जो भी progression वगैरह लगाते थे, similarly वो progression लगाने से पहले हमें सिर्फ एक चीज डालनी है, वो है limit n tends to infinity. और जब आप वो limit n tends to infinity उस फॉर्मूला में डालोगे तो आपको क्या पता चलेगा, at the end अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है आपका, that is p is equal to r upon r. While at the beginning जब आप पेमेंट कर रहे हो तो उसमें एक एडिशनल पेमेंट होगी जो कि आपकी बिगनिंग की है, that is r plus r upon r. That's it. Perpetuity is the easiest question you can get in mathematics of finance, I believe. How? We will just see it in the next few minutes. Now see this. पहले इसको देखते हैं. Find the amount. Ma'am? हाँ बोलो बेटा. Ma'am, can you please explain the concept again? Yeah, sure. What does perpetuity mean? पहली बात, like I started out by saying, जब हम बोलते थे company has perpetual existence. In simple layman's term, perpetual का मतलब है continuous, perpetual का मतलब है forever. ठीक है, मतलब हर एक बाकी क्वेश्चन में क्या होता था, n number of years होता था कुछ.
कि इतने साल, 5 साल, 10 साल, मुझे 5 साल में लोन चुकाना है, मुझे 10 साल में लोन चुकाना है, मुझे ये इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 10 साल तक मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक तरह से n है नहीं। It also means that n tends to infinity. Just give me a minute, Peter. Go. Yeah. हाँ, so n tends to infinity. So which means that जब n tends to infinity, जैसे ही हमने सारे ऑर्डिनरी एन्युटी और जब एन्युटी ड्यू भी किया था हमने सबका क्या किया था, हर एक का कि भाई इस साल में मैंने r प्लस इतना रेज टू द पावर n प्लस करते करते मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, उस पे जेनेटिक प्रोग्रेशन लगाया। अब उस फॉर्मूले में मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है। जब मैं उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगी तो ऑटोमेटिकली जब मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, मैं ये देख रही हूँ। अगर मेरे पास एट द एंड है तो वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, P is equal to R upon R. While on the other hand, यहाँ पे क्या है, at the beginning है तो मतलब स्टार्टिंग में एक पेमेंट है, that means R plus R upon R. That is how you have to remember it. Now we'll see with the help of हाँ बोलो। बट अगर जैसे हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट तो नहीं करता होगा, बिकॉज अगर हमने कुछ लोन लिया है तो एक पीरियड के बाद हमें रिटर्न तो करना ही होगा। मतलब So how is it ये उस टाइप का हो गया जिसमें कि अगर आप कहते हो ना एक तरह की ऐसी पॉलिसी जहाँ पे आप ये बोलो कि भाई आपने इतने साल तक, 10 साल तक ये सारी पेमेंट देनी है, उसके बाद आपको ऑल योर लाइफ जो भी 99 ईयर्स भी अगर आप जियोगे या जितने भी साल जियोगे आपको ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिस दैट काइंड ऑफ पॉलिसी। ओके, वो क्वेश्चन 3 समझ आ जाएगा अभी। जैसे कि ये है एंडोमेंट फंड भी कहते हैं। जैसे ये देखो, फाइंड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इनटू एन एंडोमेंट फंड। एक फंड ले रही हूं मैं, क्यों ले रही हूं? दैट इज टू बी कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 9% पर एनम टू प्रोवाइड एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ 27,000 फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल। सो अब पहली बात कि मैंने ये क्वेश्चन देखा, देखो मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ, अभी तक बहुत ही सिंपल है, अब आपको सब आ गया आज के बाद। जब आप अब ऐसे नहीं करना कि बुक में से एक एक टॉपिक लेके करोगे ना, बड़ा इजी होगा। क्वेश्चन पेपर जब आप उठाओगे और उसमें देखोगे तब आपको देखना पड़ेगा भाई इसमें एन्युटी ड्यू लगेगा, ऑर्डिनरी एन्युटी लगेगा, परपेचुइटी लगेगा, क्या लगेगा, वहां सारा कंफ्यूजन होगा। मैं भेजूंगी भी आपको। जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, फाइंड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इनटू एन एंडोमेंट फंड, कि भाई मेरे को कितना पैसा एंडोमेंट फंड में डालना चाहिए, पहली बात। दैट इज टू बी कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड होगा वो एनुअली एट द रेट ऑफ 9%। तो मुझे पता है R is 9%। टू प्रोवाइड फॉर एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ 27,000। अगेन आई गो बैक ऑन प्रेजेंट वैल्यू। पहली बात मैंने आपको बोला परपेचुइटी में सम की तो बात ही नहीं आती, अमाउंट की तो बात ही नहीं आती, तो प्रेजेंट वैल्यू ही आता है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्यों आता है? देखो यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन कहाँ आता है, क्वेश्चन यहाँ आता है। यहाँ गलती कहाँ हो सकती है? गलती सिर्फ यहाँ हो सकती है कि आप 27,000 को P लिखते हो कि R लिखते हो। एनीबडी कैन यू टेल मी 27,000 इज P और R? कौन बताएगा? कोई भी बताओ अपनी जिसको आता है। I want to know in this formula 27,000 is equal to P or is it capital R? Ma'am, capital R. Correct. That's right. So therefore 27,000 upon 9%. ये रहा। मैम बट इसमें क्लियर कैसे हुआ है कि स्टार्टिंग में या एंड में है? हाँ ओके, आ रहे हैं हम उस पॉइंट पे। ठीक है, कैसे हुआ? एनीबडी? पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ आपके लिए, फिर मैं आप ही में से कोई जवाब देगा इसका, मुझे आई एम वेरी श्योर। Find the amount to be deposited into an endowment fund that is to be compounded annually at the rate of 9% to provide for an annual scholarship of 27,000 for an indefinite period of time. I am waiting. I think I have already answered this question, so I want some of you to answer. मुझसे क्वेश्चन ये कुछ मेंशन नहीं होता तो इट इज अज्यूम कि एंड में ही करेंगे। यस एग्जैक्टली, ये सबसे स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया गया था। जब तक कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो अजम्पशन यही है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड है। ये हमने पहले भी बात कर चुकी है, 2-4 बार हम बात कर चुके हैं। तो जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आप हमेशा यही अज्यूम करोगे दैट इट इज एट द एंड ऑफ द पीरियड। इज इट क्लियर whoever asked me the question? Okay. Yes ma'am. Fine. So we come to the last question for today and wind up the classes. So we go here. How much money is needed to ensure a series of lectures? Let me just check. Thoda doubt ho gaya is question. This is costing 25,000 lectures. Let me just check. Give me a minute. Huh?
Yeah, okay. Costing 2,500 at the beginning of each year indefinitely if the money is worth 3,000 compounded annually. अब बताओ, यहाँ जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसको आंसर भी मिल गया होगा. ये बिगिनिंग में है कि एट द एंड है? मैम बिगिनिंग. बिगिनिंग है, तो मुझे पता है मुझे r प्लस r अपॉन r लगाना है. यस मैम. एंड r मेरा 2,500 है. सो 2,500 प्लस 2,500 डिवाइडेड बाय 0.03. Is it clear, everyone? I am quickly going to recap the entire thing that we have done in our online sessions very quickly in maybe next 5 minutes. I'll try. And then wind up. And I will be sending you a couple of questions. Obviously, book तो आपके पास है ही, उसमें से तो आप कर ही सकते हो. उसके अलावा भी मैं कुछ questions आपको भेज दूँगी because this is like the last time we are meeting officially. So yeah. Application. मैं इसे बंद ही कर देती हूँ. इनफैक्ट आपसे ही पूछने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कितने लोगों को समझ आ गया कि नहीं. अपने आप बोलेंगे, जिसको जवाब आता होगा अनम्यूट कर देगा और जवाब दे देगा. ठीक है. एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ. पहली है मेरी एप्लीकेशन मुझे करनी है. मुझे अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन की बात करनी है. अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन में ठीक है, मुझे ये बताओ कि मैं किस एन्युटी की एप्लीकेशन है, किस टाइप ऑफ एन्युटी की एप्लीकेशन है. एनीवन? For amortization of loan, which kind of annuity application am I going to go ahead with? Ma'am, ordinary annuity. Okay, fine. So then I come to the next, that is bond valuation. In bond valuation, किस type की application है? Bond valuation. Ma'am, ordinary annuity only. मैम ऑर्डिनरी एन्युटी. Okay, fine. Then we come to sinking fund. ये थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देती हूँ क्वेश्चन को. सिंकिंग फंड में मुझे आप ये बताओगे, पहली बात सिंकिंग फंड में देखो, क्या आप मुझे बता सकते हो क्लियरली कि सिंकिंग फंड में कौन सी एन्युटी होगी, ऑर्डिनरी या एन्युटी ड्यू? कैन यू टेल मी? पहले तो ये बताओ, हाँ या नहीं? दोनों ही हो सकती है. दोनों हो सकती है, बिल्कुल मैम दोनों हो सकती है. सो सेकंड क्वेश्चन इज, सिंकिंग फंड में यूजुअली क्या डिफरेंस है? अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन में आपने बोला ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है, और आपने उसमें भी बोला ऑर्डिनरी एन्युटी. सिंकिंग फंड में यूजुअली फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा? हिंट है ये. सिंकिंग फंड में फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा? बोलो. फ्यूचर वैल्यू. यस, फ्यूचर वैल्यू, करेक्ट. प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स लिख लो इन लाइनों को. मतलब मैं कुछ वो नहीं लिखा रही, मैं सिर्फ पॉइंट्स ही लिखवा रही हूँ. वो ये कि भाई क्वेश्चन देखो कि आपको देखना है प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू. पहले सबसे पहले ये पता करना है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. दूसरा ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू, डेफर्ड एन्युटी, परपेचुइटी. परपेचुइटी में भी 2 केसेस हैं, एट द बिगिनिंग, एट द एंड. तो फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला का गेम है, लेकिन कौन सा कहाँ लगेगा, बस दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू सी. ठीक है. So and then we started with deferred annuity. That is when you have deferred your annuity for some period. That is deferred annuity. And finally, perpetuity, that it is goes on forever. And again my question: future value या present value? Perpetuity में क्या लगेगा? Future value या present value? प्रेजेंट वैल्यू. Present value, exactly. That is the gist of the entire mathematics of finance. And so I guess that is pretty much it. I am done with my syllabus with all of you now. So I guess this was my last class with you. If anybody has anything to say, please say that. Otherwise, we'll just wind up the class in another 5 minutes. Anybody wants to put any point or anything? Now you can practice the questions on mathematics of finance. I'll try to send you questions which are of the recent question papers. And we'll try to maybe discuss over the group or so that, what application, which application, and these kind of things we can do it on WhatsApp group. Okay? Any other suggestion or anything anybody wants to say, or can I wind up all of you? That's it? Okay then. Bye-bye. Thank you. See ya.